अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से मनी एंड बैंकिंग के 38th लेक्चर में हो रही है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड वेलोसिटी ऑफ मनी, और इसी से रिलेटेड अगले टॉपिक्स जो हैं हमारे पास कि वी नीडेड टू लुक एट द डिमांड फॉर मनी। लेकिन टाइम डिड नॉट परमिट अस टू गो टू द second topic, which was the demand for money. So what we are going to do today is just revise what we have covered so far and then from there build on to discuss the demand for money. So basically we were discussing the concept of the relationship between the money growth and inflation. Empirically, if we look at the data for various economies, and we presented the data for the 2 decades. पिछले लेक्चर में in a graph we collected the data for 2 decades, और उसमें वो data set was for a period of 81 to 2003, almost 2 decades, and we took 167 countries, and we were trying to look at the relationship between the money growth and inflation. Growth rate and inflation and then the money growth. And what we saw was a positive relationship between the two. और वो relationship was with a very high correlation. 0.92 or 0.93 was the correlation coefficient. And from there we could conclude कि हमारी money growth and inflation, it moved in the same direction. But when we looked at the countries, most of the countries, they were scattered close to the origin, which means low inflation, low money. And then we also had a 45-degree line. 45-degree line indicating that any country which is on the line is having the money growth and inflation at the same value, at the same level. And the countries above the line were reflecting higher inflation and low money and vice versa. And then we segregated the data for the moderate inflation countries, because this was the entire data set for the first graph. Try to recall, then we had another graph. अब उस ग्राफ के अंदर we just selected the countries, and they were like 129 countries approximately, and these were the moderate inflation countries. There we saw that the most of the countries, they were lying below the 45-degree line, meaning thereby कि उनका rate of inflation basically was lower than the money growth. अब उसमें क्या वजह थी? उसमें वजह ये थी कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन के साथ साथ ये जो मॉडरेट इन्फ्लेशन कंट्रीज थे, उनके अंदर रियल ग्रोथ वाज आल्सो टेकिंग प्लेस। और इसी फिनोमिना को आगे एक्सप्लेन करने के लिए वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द इरविन फिशर, एंड फिशर गेव अस द आइडिया ऑफ द एक्सचेंज इक्वेशन। अब एक्सचेंज इक्वेशन में he took 4 component. अब उन component में एक component important जो था, that was of the velocity of money. What basically is the idea of velocity of money? हमने ये कहा कि the number of time one currency unit changes hand. In other words, we were looking at the role of the money as a means of payment. क्योंकि हम कहते हैं कि मनी जो है, it performs 3 important roles. The first role is the use of money as means of payment, and then the use of money as a unit of account, and the use of money as a store of value. So here when we are looking at the velocity of money, we are focusing on the first role of money. और वो first role क्या है? The means of payment. उसमें यह है कि अगर एक करेंसी यूनिट
within a particular time frame, जितने number of times it is used for transaction या it changes hand, that basically becomes the velocity of money. उसके लिए we took a very simple example of 4 students और हमने कहा one student has 100 rupees, other student has a calculator worth 100 rupees, another student had 2 tickets worth 50 each for cricket match, and then finally the 4th student had 25 pencils worth 4 rupees each. Then what happened? The first student with the currency, the 100 rupees, he bought the calculator. So that is the first transaction. Then that student who sold the calculator now has the money and he wanted to purchase the tickets for the cricket match. So he bought the tickets for the cricket match. And then that student who sold the cricket match tickets now was in need of the pencils and he bought the pencils. So now these 100 rupees, they were used for 3 different transactions. So overall the velocity, we are saying the number of times the money is used for transaction purpose or is used as a means of payment, that is the velocity of money. And from there we drew a conclusion. And the conclusion was that the velocity of money is equal to the total value of transaction and of course the total amount of money, the quantity of money. So value of transaction divided by the quantity of money. So there were 3 transactions and the total value of all 3 transactions were 300 and the amount of money we had to begin with was 100. So 300 divided by 100 gave us a velocity of 3. For economy-wide calculation of velocity, we have velocity is equal to the nominal GDP divided by the money. So the nominal GDP of course is P times Y and that is easily available data. And the money, now when we talk about the money now, there are different monetary aggregates. So the level of money which comes in the denominator, we can calculate velocity for M1, we can calculate the velocity for M2. What basically is M1 and M2, they are different measures of money. M1 is the most liquid, M2 bit less liquid, and then M3 and so on. So we can calculate the velocity of M1, M2, M3 separately. Simply what we have to do is we should take the nominal GDP and then we need to divide it by the level or value of M1, M2, M3 whatsoever, and then the resulting amount will be the velocity for that particular monetary aggregate. Based on this concept, Irving Fisher gives us the exchange equation. In exchange equation, his MV, where M is the money, M into its velocity, money into its velocity is equal to P, which is the price level, into Y, which is the real GDP. In other words, P into Y is also the nominal GDP. And then he said we can also convert this equation, exchange equation, in terms of percentages. We can express this in terms of percentages. And then we said, okay, the percentage M, change in M, percentage change in M plus the percentage change in V is equal to the percentage change in P plus the percentage change in Y. Now what basically is the percentage change of M? The growth rate in money, change in growth rate in money. And what basically is the percentage change of V? The velocity. And then growth
growth in velocity, and then equal to percentage change in P is the inflation, and percentage change in Y is the real growth in real GDP. For a period of time, if we make simplified assumptions, if we say that the percentage change in velocity is 0, we are not saying that velocity itself is 0. We are saying the rate of change in velocity is constant. So the percentage change in velocity, if that is 0, and on the other hand side, if the percentage change in the GDP is also 0, because the GDP is determined, real GDP is determined by the available resources and the available technology, which does not change quite often. So we can make this simplified assumption for a short period of time, whereby we can say percentage change in V is equal to 0, and of course the percentage change in Y is also 0. Then we are left with percentage change in M is equal to percentage change in P, which means the money growth is directly related to the growth in price level or the inflation rate. So we have a direct relationship between the money growth and inflation. If the money growth in an economy will double, then the inflation will also double. And this is from where the Milton Friedman said that the inflation is a monetary phenomena. And we can say that the inflation cannot take place without the accommodating monetary adjustments. क्योंकि जब हम मनी ग्रोथ की बात करते हैं, then पिछले लेक्चर्स में जैसे हमने बात की, the role of the central bank along with the other commercial bank is very very important. And then we also talked about कि हमारे central bank के पास certain policy tools हैं through which it controls the money supply in a particular country during a particular period of time. उसमें हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात की, उसमें हमने बात की रिजर्व रिक्वायरमेंट की, और उसमें हमने बात की द सेंट्रल बैंक लैंडिंग टू द कमर्शियल बैंक, द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, और डिस्काउंट लोन्स. तो इन सब की, whether we are talking about the open market operation or any of the other tools, through the deposit creation multiplier and through the money multiplier, the change takes place in the money growth, and that money growth leads to a change in the inflation rate, provided the change in velocity is 0 and the change in real GDP is 0. And then we said, okay, from this exchange equation, we can also calculate the velocity. We can derive the velocity from this. And that we did from our example of those 4 students. Okay, there the velocity is equal to the total value of transaction divided by the money stock. So total value of transaction 300 divided by, to begin with we had 100 rupees. So 300 divided by 100 is equal to 3. We can have a similar formula for an economy. And there we can set the velocity is equal to the nominal GDP divided by the money. And those figures are available and we can calculate the velocity. On the basis of this, the Friedman gave us certain policy recommendations for the velocity of money. उन पॉलिसी रिकमेंडेशंस में सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि द पॉलिसी मेकर्स दे शुड ट्राई टू कीप द वेलोसिटी एट ए स्टेबल रेट, कांस्टेंट स्टेबल रेट. और अगर वेलोसिटी को इस तरह करते हैं
that the Milton Friedman to conclude that the central bank should simply set money growth at a constant rate. Okay, and then आपको याद होगा we also talked about a scenario in which we said कि अगर हमारी money growth जो है that can change inflation, it has an impact on the inflation. In a similar way, the velocity also has an impact on inflation. But here for simplicity, if we assume over a shorter period of time, आगे velocity constant है, तो policy makers को क्या करना चाहिए? They should try to keep the growth rate in money at certain constant stable rate. अब वो किसके बराबर होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, क्या उसकी वर्थ होनी चाहिए? Because on the one side of the equation we have percentage change in money plus percentage change in velocity. तो velocity की percentage change is 0. We have constant velocity. Then on the other side we have the price level change, which is inflation, and then we have the real GDP change. Now if the real GDP is also constant, then we are left with the money growth and the rate of inflation. So policymakers should strive to ensure that the monetary aggregates grow at a rate equal to the rate of real growth plus the desired level of inflation. कि अगर हम ये कहें कि हमारी डिजायर्ड लेवल ऑफ कुछ इन्फ्लेशन है, तो क्या है कि हमारे पास फॉर एनी इकोनॉमी टू ग्रो अ सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज डिजायर्ड. वी कैन नॉट टॉक अबाउट जीरो इन्फ्लेशन. आप याद करें कि जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे थे फॉर द सेंट्रल बैंक, उसमें भी हमने कहा था लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन. We do not talk about zero inflation. So a certain positive level of inflation is needed for growth of any economy. Therefore, our percentage change in growth or percentage change or growth in money should be set equal to the growth rate in the real GDP and the इन्फ्लेशन रेट. ना क्योंकि अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि हमारा सेंट्रल बैंक विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मेजर्स, सर्टेन इंस्ट्रूमेंट, सर्टेन टूल्स कैन चेंज द मनी सप्लाई. और वो सारी चेंजेस जो हैं मल्टीपल होती हैं. वी हैव द डिपॉजिट मल्टीप्लायर एंड वी आल्सो हैव द मनी मल्टीप्लायर. So, both the deposit multiplier and the money multiplier, they play their own role and they also keep on changing. और वो किस तरह से चेंज होता है कि अगर बैंक्स जो हैं वो एक्सेस रिजर्व रखना शुरू कर दें या एक्सेस रिजर्व के लेवल को बढ़ा दें तो मल्टीप्लायर छोटा हो जाएगा. इसी तरह अगर करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो बाय द नॉन बैंक पब्लिक वो ज्यादा हो जाए तो अगेन क्या होगा, द साइज ऑफ द मल्टीप्लायर विल चेंज. सो मल्टीप्लायर कैन चेंज एंड फ्रीडमैन सेज वी कैन कंसीडर द मल्टीप्लायर एज अ वेरिएबल. नाउ नोइंग दैट द मल्टीप्लायर इज अ वेरिएबल, Friedman suggested changes in the regulations that would limit banks' discretion in creating money and tighten the relationship between the monetary aggregate and the monetary base. कि हमारे सेंट्रल बैंक जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है to ensure the stable functioning of the financial system, it should limit the ability of the commercial banks to create money through whatever tool. It should tighten the relationship between the monetary aggregate and the monetary base. अब monetary aggregate की बात अभी हम कर रहे हैं, M1, M2, M3, and what basically is the monetary base. आपको याद होगा कि monetary base में we were talking about, जिसको हमने high powered money भी कहा था. And then we said कि आपकी currency plus the deposits of the commercial banks
or the reserves of the commercial banks with the central bank that constitute the monetary base. और मॉनेटरी बेस को हम हाई पावर्ड मनी क्यों कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारी मनी ग्रोथ जो है वो चेंज होती है. एंड देयर ही इज सेइंग कि वी शुड टाइटन द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉनेटरी एग्रीगेट्स एंड द मॉनेटरी बेस. However, even with Friedman's recommendations, the central bank would stabilize inflation by keeping money growth constant only if velocity were constant. कि फ्रीडमैन की ये दोनों suggestions जो हैं कि the central bank should have certain rules and regulation through which commercial banks की ability to create money को limit करना चाहिए और एक strong लिंक डेवलप करना चाहिए बिटवीन द मॉनेटरी बेस एंड द मनी ग्रोथ. डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, सेंट्रल बैंक कैन नॉट स्टेबलाइज द मनी ग्रोथ अनलेस द वेलोसिटी ऑफ मनी इज बीइंग स्टेबलाइज्ड. अब वेलोसिटी ऑफ मनी कहां से हमारे पास आती है? ऑफ कोर्स कि जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ मनी एज अ मींस ऑफ पेमेंट. और हम ये कह रहे हैं कि मनी कितनी दफा जो है वो पेमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है. एंड हु इज द यूजर ऑफ मनी फॉर पेमेंट? मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर द कंज्यूमर्स. सो इन द लॉन्ग रन वेलोसिटी ऑफ मनी इज स्टेबल, दो देयर कैन बी सिग्निफिकेंट शॉर्ट रन वेरिएशंस. कि लॉन्ग रन में हम कह सकते हैं कि हमारी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, स्टेबल है. लेकिन शॉर्ट रन में देयर आर सो मेनी चेंजेस, और वो चेंजेस जो है कहां से आती हैं? ऑफ कोर्स फ्रॉम द कंज्यूमर्स. और इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए वी लुक एट द डिमांड फॉर मनी. बिफोर वी गो फॉर द डिमांड फॉर मनी, लेट्स गो बैक टू द सेम एक्सचेंज इक्वेशन एंड ट्राई टू एक्सप्लेन कि किस तरह अभी हम जो कह रहे थे कि सेंट्रल बैंक जो है वो डिजायर्ड लेवल ऑफ मनी ग्रोथ को कहां पे रखेगा. वो होनी चाहिए टारगेट लेवल ऑफ मॉनेटरी ग्रोथ, एक डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्फ्लेशन और द ग्रोथ रेट इन रियल जीडीपी के ऊपर. सो लेट्स टेक अ स्मॉल सिंपल एग्जांपल टू एलैबोरेट ऑन दीज रिलेशनशिप्स हियर. कि assuming that central bank can accurately control the growth rate of M2 as well as accurately forecast the real growth. तो अब हम इसमें ये कह रहे हैं कि हमारा मॉनेटरी एग्रीगेट जो हम ले रहे हैं दैट इज M2, और हम ये कह रहे हैं कि हमारा सेंट्रल बैंक जो है उसको M2 को कंट्रोल कर सकता है, और उसके साथ साथ दूसरी तरफ जो रियल जीडीपी है उसकी ग्रोथ रेट को भी एक्यूरेटली फोरकास्ट कर सकता है. विद दिस, इफ वी लुक एट दिस इक्वेशन हियर, दैट द मनी ग्रोथ प्लस नंबर 2 पे हमारे पास क्या था? मनी ग्रोथ इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू price level change, which is the inflation, and the rate of growth in the real GDP. So what we have here is that with an inflation objective of 2% and a real growth forecast of 3.5%, equation of exchange tells us that the policy makers should set money growth at 5.5% minus the growth rate of velocity. क्योंकि हमारे पास जो अदर साइड ऑफ द इक्वेशन है, एक इन्फ्लेशन है और एक जीडीपी ग्रोथ है. अगर हमने इन्फ्लेशन को सेट किया है एट 2% और जीडीपी ग्रोथ को, रियल ग्रोथ को 3.5 पे, तो टोटल अदर साइड ऑफ द इक्वेशन इज 5.5%. अब दूसरी साइड पे हमारे पास जो है वो मनी ग्रोथ कितनी होनी चाहिए? सो अगर हमारा टारगेट मनी ग्रोथ का है कि 5.5%, and then we should minus the growth rate of velocity from this 5.5%. If velocity increases by 3%, then the money growth needs to be 2.5%, क्योंकि टोटल हमारे पास 5.5% है. अगर इसमें से velocity 3% से बढ़ जाती है तो 5.5% minus 3% leaves us with the growth in M2 equal to 2.5%. If it falls by 3%, यानी अगर हमारी velocity कम हो जाती है by 3%, then what we have? We need to have a growth in M2 equal to
5.5% now plus 3%, which will give us a growth rate target of 8.5% for M2. So when inflation is low, short-run velocity growth can be several times the policy maker's inflation objective. क्योंकि जब हमारी inflation level is low, real GDP is there, तो हमारी monetary growth जो है that plus हमारी velocity जो है that gives us the other side of the equation. So to use money growth targets to stabilize inflation, policy makers must understand how velocity changes. कि जब हम मनी ग्रोथ के टारगेट को फिक्स करना चाहते हैं, डिटरमिन करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, तो दे शुड कीप इन माइंड द बिहेवियर ऑफ द वेलोसिटी, कि वेलोसिटी किस तरह चेंज हो रही है. अभी जैसे कि अभी हमने हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ ये देखा था कि अगर हमारे पास 5.5% इज द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, इन्फ्लेशन प्लस द रियल जीडीपी ग्रोथ, तो दूसरी साइड पे हमारे पास क्या होना चाहिए, मनी ग्रोथ का टारगेट. कि अगर वेलोसिटी कम हो गई है तो उसमें ऐड अप करके टारगेट फॉर द मनी ग्रोथ, अगर वेलोसिटी बढ़ गई है तो उसमें से सबट्रैक्ट करके हमारे पास मनी ग्रोथ का जो है वो टारगेट आएगा. The fluctuations in the velocities are tied to changes in people's desire to hold money. And so in order to understand and predict the changes in velocity, policy makers must understand the demand for money. क्योंकि velocity जो है वो कहाँ से आती है, क्योंकि यहाँ पे velocity की जब हम concept introduce किया है, हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ मनी एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट. अब वो कौन यूज करता है, जनरल पब्लिक नॉर्मली. तो इसलिए हमें जो है वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वी नीड टू गो फॉर द डिमांड फॉर मनी. याद होगा कि हमने बात की थी कि डिमांड फॉर मनी कम्स फ्रॉम द नॉन बैंक पब्लिक एंड सप्लाई फॉर मनी कम्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक एंड द एंटायर फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम. तो इसलिए in order to look at this relationship we need to go back and look at the velocity of money. अब इस velocity को देखने के लिए, इससे पहले कि हम इसके डिटेल में जाएं and we go for the elaboration and explanation of the demand for money, let's look at the historical data. अब historical data के लिए we have the velocity of M1 and M2. अब M1 and M2 के लिए for a period of 1959 to 2003, the upper line is the M1 velocity and the lower line is the M2 velocity. On this particular scale हमें ये नजर आ रहा है कि हमारा M1 जो है, M1 is more liquid. Currency notes, coin, checkable deposit. So liquidity for M1 is high. तो हम ये देख रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है और M2 की कम लग रही है हमें. लेकिन अभी अगले ग्राफ में जब हम जाते हैं और उसको डिफरेंट स्केल के ऊपर, उसके अपने M2 के स्केल के ऊपर हम अगर ड्रा करते हैं, व्हाट वी सी हियर इज कि M2 की वेलोसिटी जो है दैट इज आल्सो वेरी वोलेटाइल. इसके अपने वर्टिकल स्केल के ऊपर दैट वेलोसिटी इज वेरी वोलेटाइल. तो दोनों ही की M1 या M2 दोनों ही मोस्टली यूज होती हैं हमारे एग्रीगेट्स फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेस. तो व्हाट वी सी इज के वेलोसिटी जो है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. इसलिए वेलोसिटी को जहन में रखते हुए हमें मनी ग्रोथ के टारगेट जो है वो सेट करने चाहिए. अब इसको मजीद देखने के लिए कि वेलोसिटी है क्या, ये कहाँ से आती है, वी नीड टू गो बैक एंड स्टार्ट लुकिंग एट द डिमांड फॉर मनी. जब हम मनी की बात करते हैं, वी सेड कि हमारे पास मनी जो है इट परफॉर्म्स 3 डिफरेंट रोल्स या फंक्शंस ऑफ मनी. क्या है? इट इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, इट इज यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड इट इज यूज्ड एज यूनिट ऑफ अकाउंट. अब जब हम डिमांड फॉर मनी की बात करेंगे तो वी विल बी फोकसिंग ऑन 2 functions of the demand for money. पहला फंक्शन मीन्स ऑफ पेमेंट में, जिसमें हम बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, तो वहां पे हमारा फोकस जो होगा दैट विल बी द फंक्शन ऑफ मनी एज और द रोल ऑफ मनी एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट.
फिर उसके बाद हम पोर्टफोलियो डिमांड फॉर मनी की जब हम बात करेंगे तो देयर वी विल बी फोकसिंग ऑन द फंक्शन ऑफ मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. तो इफ यू स्टार्ट looking at the transaction demand for money, then the quantity of money people hold for transactions purposes, it depends on 3 variables. कि लोग जो हैं वो कितनी मनी अपने पास रखना चाहेंगे in order to complete their transaction demand. जो उन्होंने परचेजेस करनी है, जो सेल परचेज करनी है, उस सारी ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट करने के लिए what should be the level of the money they should keep with themselves. Now this level is determined by 3 variables. पहला है income of the people. आप कितना रखना चाहेंगे? Of course, liquid form में there will be some fraction of your income. Number 1. Number 2 हमारे पास है the cost of holding money. Cost of holding money क्या है? The opportunity cost. क्योंकि मनी जो है पहले भी हमने कहा था इट हैज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. उसकी कॉस्ट क्या है? द फॉरगोन इंटरेस्ट. कि अगर आप उसको लिक्विड फॉर्म में ना रखते, अगर आप उसको कहीं और इन्वेस्ट करते तो उसके ऊपर जो इनकम होती दैट बेसिकली इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द मनी. ऑफ कोर्स बेनिफिट भी है कि आपके पास लिक्विडिटी अवेलेबल है. As and when required basis पे you can complete your transaction. And thirdly, the availability of the substitutes. अब हम इन तीनों को one by one जो है वो डिस्कस करेंगे कि nominal money demand rises with the nominal income. As more income means more spending which requires more money. कि अगर हमारे पास nominal income ज्यादा है तो ऑफ कोर्स हमारा एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होगा. विल बी स्पेंडिंग मोर. यानी हम सब लोग अपनी इनकम के हिसाब से ही खर्च करते हैं. सो द पीपल विद हायर इनकम लेवल वुड बी स्पेंडिंग मोर और उन ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए दे विल डिमांड मोर मनी. सो वी कैन से कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन the level of income and the transaction demand for money. Now holding money allows people to make payments but has cost of interest foregone. जैसे अभी मैंने बात की थी कि सेकंड जो हमारा वेरिएबल है, पहला तो था इनकम और डिमांड फॉर मनी, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी पॉजिटिवली रिलेटेड है. अब हम सेकंड वेरिएबल या सेकंड डिटर्मिनेंट of the demand for transaction demand for money की बात कर रहे हैं and that is the cost. और cost जो है वो है कि the opportunity cost of the foregone interest. कि जब आप मनी को रखते हैं तो it does not pay any interest. अगर आप उसी को किसी इन्वेस्टमेंट में लगाते तो उससे जो इंटरेस्ट आता तो वो आपका जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. So there may also be cost in switching between interest-bearing assets and the money. अब दो चीजें हैं कि आप कितने अमाउंट ऑफ मनी जो है वो डिमांड करते हैं वो ट्रांजैक्शन पर्पसेस. वो डिपेंड करते हैं नंबर 1 ऑन कि अगर आप मनी की शक्ल में ना रखते और कहीं और इन्वेस्ट करते तो कितनी इनकम होती, दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एंड प्लस अगर आप मनी को स्विच करते हैं टू द इंटरेस्ट अर्निंग अल्टरनेटिव तो उस पर कितना खर्चा आता है. कीपिंग इन माइंड दीज 2 थिंग्स यू डिटरमिन द लेवल ऑफ मनी फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेस. सो इन ऑर्डर टू फर्दर इलैबोरेट दिस, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. इन दिस एग्जांपल वी आर सेइंग if your monthly earning is rupees 30,000 deposited in bank each month by your employer and assuming you spend rupees 1,000 each day, after 15 days your checking account balance will decline to 15,000 and to 0 on 30th day. बड़ी सिंपल से हम एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं. क्या लेट्स अज्यूम आवर मंथली इनकम इज 30,000. At the beginning of the month, we receive that income
थ्रू आउट द मंथ वी स्पेंड। अगर हम अपना एवरेज एक्सपेंडिचर रखें तो 1000 पर डे, तो क्या होगा 15 डेज के बाद हमारे पास बैलेंस होगा 15,000 का, और लास्ट डे विच इज द 30th डे विल हैव अ जीरो बैलेंस। नाउ योर बैंक ऑफर्स यू अ चॉइस of having the entire 30,000 in your account or shift some of the money, some amount of funds back and forth between checking and the bond fund. एक checking account है, एक bond fund है। bond fund जो है वो that gives you the interest। अब बैंक जो है वो आपको चॉइस देता है कि या आप सारे का सारा जो है वो चेकिंग में रख लें या आप शिफ्ट करें बैक एंड फोर्थ बिटवीन द चेकिंग अकाउंट एंड द बॉन्ड फंड। The bond fund pays interest but adds a service charge of ₹20 for each withdrawal. How would you manage your funds and what should be your frequency of shifting the funds between the bond fund and checking account? कि अब हमारे पास जो bond fund है, it gives us certain earnings in the form of the interest. But when we try to shift our funds from the bond fund to the checking अकाउंट टू यूज देम फॉर ट्रांजेक्शन पर्पसेस, तो हमें वो जो शिफ्ट है वो ट्रांजेक्शन जो है वो हमें कॉस्ट करेगी ईच ट्रांजेक्शन ₹2 पर ट्रांजेक्शन, ₹20 पर ट्रांजेक्शन। अब हमारे पास लेट्स कंसीडर 2 अल्टरनेटिव्स। एक अल्टरनेटिव है नंबर 1, वी आर सेइंग स्ट्रेटजी 1, लीव एंटायर बैलेंस इन द चेकिंग अकाउंट। अब उसमें क्या होगा, चेकिंग अकाउंट बैलेंस एक तरफ हमने है ग्राफ पे अपर पोर्शन ऑफ दिस स्लाइड, और दूसरी तरफ है हमारा बॉन्ड फंड। अब डेफिनेटली हमारे पास बॉन्ड फंड में हमने कहा कुछ नहीं रखना, तो बॉन्ड फंड का बैलेंस विल रिमेन 0, लेकिन हम एंटायर अमाउंट जो है वी आर कीपिंग इन द चेकिंग अकाउंट। तो क्या होगा, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ बिगनिंग पे हमारे पास 30,000 बैलेंस होगा और 30th डे ऑफ द मंथ हमारे पास बैलेंस विल बी 0। तो चेकिंग अकाउंट में विल हैव 30,000 एंड देन ऑन 30th डे 0। देन वी टॉक अबाउट द सेकंड अल्टरनेटिव। अब सेकंड अल्टरनेटिव में हम क्या कर रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर हाफ ऑफ द फंड्स टू द बॉन्ड फंड एंड देन ट्रांसफर बैक एट मिड मंथ। टू बिगिन विद, जब आपको 30,000 की इनकम मिलती है, वो 30,000 में से 15,000 तो आप रखा रहने देते हैं अपने चेकिंग अकाउंट में और 15,000 आप शिफ्ट कर देते हैं बॉन्ड फंड में। 15 दिनों के बाद आपका चेकिंग बैलेंस जो है, क्योंकि 1000 पर डे आप खर्च कर रहे हैं, तो 15,000 खत्म हो जाएगा एंड यू विल हैव अ 0 बैलेंस। तो आप क्या करेंगे कि अपने बॉन्ड फंड से ट्रांसफर कर देंगे मनी बैक टू द चेकिंग अकाउंट। तो 15 दिनों के बाद आपका बॉन्ड फंड विल हैव अ 0 बैलेंस एंड चेकिंग अकाउंट विल हैव अ न्यू बैलेंस ऑफ 15,000। एंड दिस इज व्हाट वी हैव रिफ्लेक्टेड ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ दिस ग्राफ हियर, कि इनिशियली जब हम चेकिंग अकाउंट में देख रहे हैं वी हैव द 15,000, वो डिक्रीज करता रहता है, 15th डे पे दैट बिकम 0। फिर 15th डे पे व्हाट वी ब्रिंग इज फ्रॉम द बॉन्ड फंड ट्रांसफर करते हैं, तो वी हैव अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ 15,000 इन आवर चेकिंग अकाउंट। ऑन 30th डे वो खत्म होके फिर 0 पे हो जाता है। अब जब हम बॉन्ड फंड बैलेंस को देखते हैं तो इनिशियली बॉन्ड फंड का बैलेंस कितना है 15,000, लेकिन 15 डे के ऊपर आप उसको ट्रांसफर बैक कर देते हैं, तो पूरे का पूरा 15,000 जो है दैट गोज टू 0। So we have a block here कि from 0 to 15 days the level of the bond fund balance is 15 और उसके बाद जो level is 0। अब इसको देखते हैं कि whether we should go for alternative 1 or 2. For that we have to consider the cost of shifting as well. Your choice depends upon the interest rate you receive on the bond fund. If the interest income is at least as much as the service charge, then you will split your paycheck at the beginning of the month. कि बॉन्ड फंड में हम
इन्वेस्ट क्यों करते हैं कि हमें कुछ इंटरेस्ट इनकम होती है, लेकिन उसके साथ साथ जब हम बॉन्ड फंड से ट्रांसफर करते हैं अपने फंड बैक टू द चेकिंग अकाउंट, तो उसमें हमें कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ती है। इसलिए हम ये देखेंगे कि एक तरफ हमें इनकम कितनी होती है बॉन्ड फंड से, और उसको हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग ट्रांजैक्शन जो कि 20 है। सो अदरवाइज यू विल नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड फंड। अगर हमारे पास इंटरेस्ट इज नॉट हायर देन द कॉस्ट of transaction, we will not invest. If it is higher, then we will invest. If you shift half your funds once, at the middle of the month, you will have 15,000 in the bond fund during the first half of the month and 0 during the second half. So your average balance will be 7,500. Making shift will cost you rupees 20. So if the interest on 7,500 is greater than 20, you should make the shift. क्या बॉन्ड फंड के ऊपर अगर आपको जो इंटरेस्ट इनकम है दैट इज ग्रेटर देन 20, तो फिर आप करेंगे, आप कैलकुलेट किस पे करेंगे, एवरेज बैलेंस के ऊपर। द एवरेज बैलेंस इन द बॉन्ड फंड इज 7,500, क्योंकि 15,000 फॉर द फर्स्ट 15 डेज एंड 0 फॉर द लास्ट 15 डेज, ओवरऑल पर डे बैलेंस आपका जो है एवरेज बैलेंस जो बन जाता है दैट इज 7,500. सो हियर एट मंथली इंटरेस्ट रेट ऑफ 0.27%, एंड हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दैट, क्या आपने लिया, कॉस्ट कितनी है ₹20 शिफ्टिंग की, एवरेज होल्डिंग कितनी है 7,500. सो वी हैव 20 डिवाइडेड बाय 7,500 इज इक्वल टू 0.0027 or 0.27%. Now, if the interest on the bond is higher than 0.27%, you will invest in the bond. Otherwise, you will not invest in the bond fund and you will go for the alternative one, जिसमें सारी की सारी अमाउंट जो है आप चेकिंग अकाउंट में रखते हैं. Now, as the nominal interest rate rises, people reduce their checking account balances, which allows us to predict that velocity will change with the interest rate. क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो डज इट रिफ्लेक्ट कि बॉन्ड फंड के ऊपर जो है अर्निंग भी बढ़ेगी। तो अर्निंग की जब फोरकास्ट ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट करेंगे फ्रॉम द चेकिंग अकाउंट टू द बॉन्ड फंड। और जब चेकिंग अकाउंट में हमारे पास बैलेंस कम होगा तो उसी अमाउंट को बार बार ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाएगा और जिसकी वजह से हमारी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। सो हायर द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, द लेस मनी इंडिविजुअल्स विल होल्ड फॉर अ गिवन लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन एंड हायर द वेलोसिटी ऑफ मनी. नाउ आवर ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज आल्सो अफेक्टेड बाय द टेक्नोलॉजी. जैसे आजकल हमारे पास इस तरह की एटीएम मशीन्स, डेबिट, ये वो सारी इनोवेशंस है जिसकी वजह से हमारे पास डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेस जो है वो कम हो गई है. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम मशीन्स, ऑल ऑफ दीज इनोवेशंस दे हैव डिक्रीज द डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी. तो इससे क्या होता है कि जब और अगर ये हमारे अल्टरनेटिव्स जो हैं they are not costly. If the cost of these alternatives are less, then we can comfortably use these alternatives. So what we will be doing? We will demand less for transaction purposes. तो जब demand for money for transaction purposes कम हो जाती है, तो what happens? कि we are going to use the same for all the transactions. वही बैलेंस हमारा कम होगा तो उसी को हम बार बार यूज करना चाहेंगे एंड दैट विल रिजल्ट इन हायर वेलोसिटी ऑफ मनी. तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर कम हो जाती है दैट विल आल्सो लीड टू द हायर वेलोसिटी. और उसके साथ साथ अगर इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड बढ़ जाता है और वो इतना ज्यादा हो जाता है कि ट्रांजैक्शन जो है शिफ्टिंग फ्रॉम द बॉन्ड फंड टू द चेकिंग अकाउंट उसकी कॉस्ट से ज्यादा हो जाए,
तो वी वुड लाइक टू कीप more in the bond fund, less in the checking account, and as a result, velocity of money will increase. Now, suppose your bank offers free automatic transfer account. You sign up for it, but continue using your old check and debit account. Your take home pay is same 30,000. Each time you make a purchase, your bank automatically shifts the amount of purchase from your bond fund to your checking account, where it remains for 1 day before being paid to your creditors. क्या अब हम बात करना चाह रहे हैं कि एक अल्टरनेटिव है आपके बैंक ने दिया कि जब आपने बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन जब आपकी ट्रांजैक्शन आती है तो ऑटोमेटिकली आपके फंड उससे शिफ्ट होते हैं चेकिंग अकाउंट में और वहां से आपकी जो है ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है. गिवन दिस चॉइस हियर, योर इनकम लेवल इज 30,000, so spending your rupees 30,000 in 30 days, your average money holding will be 1,000, which is far below 1,500 you would hold if you simply left 30,000 in your checking account and spend it at a rate of 1,000 per day. So lower the cost of shifting funds from your bond fund to your checking account, the lower your money holdings at a given level of income and the higher the velocity of your money. कि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग द फंड जो है वो कम होती है तो क्या होगा, आप जो है ज्यादा बॉन्ड फंड में रखेंगे, कम चेकिंग अकाउंट में रखेंगे, ट्रांजैक्शन बैलेंस आपका कम होगा एंड देयरफॉर आपकी जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वो ज्यादा हो जाएगी. सो एन इंक्रीज इन द लिक्विडिटी ऑफ स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर एसेट रिड्यूसेस द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी. एक और फैक्टर है, दैट इज द लिक्विडिटी ऑफ द अल्टरनेटिव्स. अब अल्टरनेटिव्स हमारे पास क्या है, या तो हम रखें अपने फंड्स इन द फॉर्म ऑफ द मनी, या इनको इन्वेस्ट कर दे बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, सिक्योरिटीज में. अगर उन अल्टरनेटिव्स की लिक्विडिटी बढ़ जाती है, दे कैन बी कंफर्टेबली कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली एंड कंफर्टेबली, तो हम क्या करेंगे, उनमें हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ट्रांजैक्शन जो है पर्पसेस के लिए डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी एंड देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ मनी जो है हमारी वो बढ़ जाएगी. फर्दरमोर, people also hold money to ensure against unexpected expenses. मैं और आप सब अपने unforeseen expenses के लिए, unexpected events के लिए we save something for rainy days. कि एक तो हमारा रेगुलर एक्सपेंडिचर एंड इनकम स्ट्रीम है, उसमें हम रूटीन के मुताबिक खर्च करते चले जाते हैं, बट ऑल ऑफ ए सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाता है, यू गेट सिक, something bad happens to your property, car accident, you need to get it repaired. So ये सारे प्लान नहीं हैं, they are all unexpected events. तो इन सब unexpected events के लिए भी we try to save something. उसको हम कह देते हैं precautionary demand for money. As a precaution, we save something. अब प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी जो है, इसको भी हम ट्रांजैक्शन ही के उसमें जो है वो डाल देते हैं, और जितनी हमारे फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी उतनी ही हमारी प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है एंड वाइस वर्सा. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वी लंप इट इनटू द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी. अब हमारा आज का लेक्चर तो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं. I'll just introduce कि हमारे पास एक और टाइप ऑफ डिमांड फॉर मनी है जिसको हम पोर्टफोलियो डिमांड फॉर मनी कहते हैं. तो आज थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे, इसकी डिटर्मिनेंट्स एंड फुल डिस्कशन जो है विल इंशाल्लाह कैरी ऑन इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो अभी हमने ये कहा था कि हमारी डिमांड जो है फॉर मनी, इट इज बेस्ड ऑन टू फंक्शंस ऑफ मनी. वन इज द फंक्शन ऑफ मनी एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट, और उससे रिलेटेड जो हमारे पास डिमांड थी दैट वाज द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी.
अब जो हम पोर्टफोलियो डिमांड फॉर मनी की बात कर रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ द मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, कि जो आपके पास सरप्लस फंड्स हैं उसको अगर आप रखना चाहते हैं, तो दैट बेसिकली इज द फंक्शन ऑफ मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। तो हमारे पास जो सरप्लस होता है, सरप्लस फ्रॉम आर एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, जो सेविंग्स है, उसमें हमारे पास बहुत सी चॉइसेस हैं। सेविंग को हम बॉन्ड्स की शक्ल में, स्टॉक्स की शक्ल में, स्टेट की शक्ल में और इवन मनी की शक्ल में रख सकते हैं। सो मनी इज जस्ट वन ऑफ मेनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी कैन होल्ड इन आवर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। बाकी अगर हम स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स की बात करते हैं तो उनका कुछ इंटरेस्ट रेट है, अर्निंग है उनके ऊपर, और उसके साथ साथ उनका कुछ मैच्योरिटी पीरियड भी है। जबकि मनी के ऊपर जीरो इंटरेस्ट है और जीरो मैच्योरिटी पीरियड है। मनी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोर्टफोलियो इज कि हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि मैक्सिमम रिटर्न हो विद मिनिमम रिस्क। सो मनी एक फंक्शन परफॉर्म करती है, इट कवर्स द रिस्क ऑफ इलिक्विडिटी। इसलिए अब हम कितने जो है वो मनी की फॉर्म में रखना चाहेंगे इन आवर पोर्टफोलियो, दैट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स। उनमें से एक फैक्टर है हमारा एक्सपेक्टेशंस, इंटरेस्ट ऑन द अदर अल्टरनेटिव, रिस्क ऑफ द अदर अल्टरनेटिव, लिक्विडिटी ऑफ द अदर अल्टरनेटिव। तो इंशाल्लाह इन सारे फैक्टर्स को हम जो है आगे जाके कंसीडर करेंगे अगले लेक्चर में, एंड विल ट्राई टू सी कि किस तरह इन फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से हमारी जो है वो डिमांड, पोर्टफोलियो डिमांड फॉर मनी चेंज हो जाती है। तो आज के लिए वी जस्ट स्टॉप हियर एंड जस्ट गो थ्रू व्हाट वी हैव डन टुडे। वी बेसिकली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी ऑफ मनी, एक्सचेंज इक्वेशन से ड्राइव करके, एंड देन व्हाट आर द फैक्टर्स रिलेटिंग टू द वेलोसिटी। उसके बाद हमने कहा वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द डिमांड फॉर मनी, and there we talked about the transaction demand for money, and we started talking about the portfolio demand for money as well. तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, where we are going to complete this topic and will continue with the rest of the topics. तो आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।